thanks a lot for giving your time, Pravesh, to me today. Thank you. ओके प्रवेश, पहले थोड़ा अपने बारे में आप बताओ. हाँ, या. My name is Parvez Alam. I started my academic journey from my village. My schooling was in Hindi medium. After 12th, unfortunately, I didn't get any college like NIT or IITs. So I took admission in a private engineering college that is associated to State Technical University in Uttar Pradesh. And in BTech, I joined in 2016 and started working hard. And I know that after BTech there is a gate like thing, and I can take admission into IIT after BTech also. I know about I knew about MTech only, and I didn't know about direct PhD like thing. So in BTech, I started working hard, and in my after my third year, I started the preparation of GATE, and somehow I knew the that is direct PhD program. That there is a direct PhD program in IITs, and if our GATE score is low and BTech percentage is high, then there is a possibility that IIT will call you, and it happened with me. Same thing. I qualified GATE in computer science and engineering. My GATE score was not so high, but my BTech percentage is very good. So I applied in all the IITs in summer, but there is only 2 or 3 IITs that call me for interview. That is IIT Hyderabad and IIT Indore. Unfortunately, I didn't get admission in direct PhD because it was my first experience. And in winter, I again applied in all the IITs. Uh, in winter, I get call from IIT Hyderabad and IIT Guwahati. And in IIT Hyderabad, there was 2 round of interview. In first round, there was a good experience, and in first round, I would there were only Okay, okay, 64 Pravesh. students Pravesh, shortlisted. I'll interrupt you. Sorry. I need to go step by step. So first, tell me what is your CGPA? CGPA My CGPA means percentage, percentage. that is 86 percentage, Great. That is 86% in BTech. okay. And No, you graduated in 2020. in computer, You yes, graduated which year? 2020. 2020. Okay. And what is your gate score? It was 391, What marks? 32. And what all India rank? It was about 9,000 something. Okay. Now, Pravesh, can you tell me your category also? OBC. OBC category. Okay, Pravesh, tell me one thing. Do you think BTech project is also important? Yeah, sir. It is a very important because in every interview, IIT professor will ask you about your BTech project. What is your BTech project, and um, what did you do in that? Okay, It was very so important to interview. okay, Pravesh, tell me like in summers, you got which calls? Where you got the calls in summers? In IIT Hyderabad and in IIT Indore, Which department? computer science and engineering. So you only applied in computer science, right? In IIT Hyderabad, I applied in artificial intelligence department, and in IIT Indore, I applied in computer science and engineering. In IT Hyderabad, is there any department of computer science also? Or Yes, sir. so you Artificial are intelligence. I applied no. in artificial intelligence only. So there, computer science is a different department, and artificial intelligence is different department. Different department. Yes, sir. So presently, you why you did not apply in computer science IT Hyderabad? Because I am interested in artificial intelligence. Okay, It was the first question of IIT professor. Why you are not applied in computer science department? So I replied that I am interested in artificial intelligence, and in AI there was a great
application of mathematics and probability theory. So I applied in artificial intelligence. So you applied in artificial, where other places artificial intelligence is there in India? So in India, I think IIT Hyderabad is only IIT that has a separate department for artificial intelligence. Okay, But in all the IITs, artificial intelligence is a very okay, good okay, area. okay, okay. So you got calls from Hyderabad and Indore in summers. Then there Yes. was interview. There was interview. Yes, sir. So what happened? I didn't get admission. Okay, good. So you applied in winter also, right? Yes, sir. So winter में कहाँ से कॉल आया था? कहाँ कहाँ से कॉल आया था? तो विंटर में आईआईटी हैदराबाद एंड आईआईटी गुवाहाटी। सर अच्छा मैंने दो। आईआईटी हैदराबाद में इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो है रिजल्ट भी आ गया 2 राउंड के बाद, तो बस मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैंने आईआईटी गुवाहाटी में इंटरव्यू दिया ही नहीं था, वहां से भी आईआईटी गुवाहाटी में कौन सा डिपार्टमेंट था? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यस, डायरेक्ट पीएचडी। डायरेक्ट पीएचडी। ओके, अब परवेज मेरे को ये बताओ कि आपको आईआईटी हैदराबाद में इंटरव्यू गया कैसे, उसके बारे में बताओ। सर आईआईटी हैदराबाद में इंटरव्यू के 2 राउंड है। फर्स्ट राउंड में जो है वो आप तुम्हारा बेसिक्स चेक करते हैं, तुम्हारे बीटेक में मतलब बेसिक्स क्या है, और इनफॉर्मल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वाई पीएचडी, वाई नॉट एमटेक, एंड व्हाट डिड यू डू इन योर आफ्टर बीटेक। आपने क्या किया इन छुट्टियों में, कोविड के टाइम पे आपने क्या किया, और मतलब इनफॉर्मल क्वेश्चंस भी वे पूछते हैं। और मतलब वे आपका मोटिवेशन चेक करते हैं कि तुम पीएचडी के लिए मोटिवेटेड हो या नहीं। और मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं मुझसे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे, और कुछ जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे मैंने उनका आंसर सही दिया, और जितने मुझे नहीं आते थे तो उन्हें मैंने मतलब मना किया कि ये मुझे नहीं आता। मतलब वे बहुत पोलाइट होते हैं प्रोफेसर, वे तुम्हें हिंट भी देते हैं कि तुम्हें ये चीज करनी इस तरीके से है, वे हिंट भी देते हैं तुम्हें। तो सर इस तरीके से मेरा इंटरव्यू गया, और फिर सेकंड राउंड भी सेम ही था लगभग। बीटेक का प्रोजेक्ट पूछते हैं वे कि आपने क्या किया बीटेक प्रोजेक्ट में। ओके, और टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछे? टेक्निकल क्वेश्चंस में मुझसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे थे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत यूज होती है। आप तो कुछ क्वेश्चंस याद है, आप कुछ बता सकते हो आप? या सर एक क्वेश्चन था कि मतलब अगर हम 2 कॉइन्स को अगर हम मतलब उछालें तो उनमें से एटमोस्ट मतलब 3 कॉइन्स को अगर हम उछालें तो उनमें से एटमोस्ट 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था। और सर ओके, एक और क्वेश्चन था, वो मुझे आंसर नहीं दे पाया था मैं उसका, लेकिन यस सर इस तरीके ओके। से मतलब पूछ रहा। अच्छा, परवेज मेरे को ये बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज तुम्हें पहले था बिफोर यू वेंट फॉर पीएचडी? यस सर, बीटेक के अंदर एक मतलब एक सब्जेक्ट होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो मतलब मार्केट में भी बहुत आजकल ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और सर फ्यूचर ही ये है। मतलब कंप्यूटर्स की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनमें सभी में मतलब सभी जितने भी एरियाज हैं इंजीनियरिंग के सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सकते हैं सभी। तो इसलिए यही मेरा मोटिव था कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही जाना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है अगले साल अभी समर्स में, एमएस एमटेक पीएचडी में, तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए? हाउ ही शुड प्रिपेयर? सर उसे अपने जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स है जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी हुआ और स्टैटिस्टिक्स, और मतलब मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स है वो तो आना ही चाहिए उसे। ओके। मतलब जैसे लीनियर अलजेब्रा हुआ, हम्म ये एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे ये हम एडमिशन मतलब कोर्स स्टार्ट होगा तो हमें ये सभी कोर्सेज फिर से कराए जाएंगे वहां ओके। पर आईआईटी। तो मतलब बेसिक्स तो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में वे तुम्हें बेसिक्स ही पूछते हैं। ओके, और ओके, इसके बाद जो तुम्हारा बीटेक के जो बेसिक्स हैं वो तो कोई भी पूछ सकता है सर, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो वो तो पूछ ही लेगा कोई भी प्रोफेसर। सर और बीटेक का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से प्रोफेसर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अच्छा, और तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल भी मांगा था क्या उन्होंने? सर जब जब मैंने अप्लाई किया था तो वहां पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा था, और जो रेफरेंस 2 प्रोफेसर्स के रेफरेंस मांगे थे उन्होंने। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने क्या लिखा था? तो मैंने अपने एकेडमिक्स के बारे में बताया था कि मतलब मैंने बीटेक में कौन से सब्जेक्ट
अच्छे लगते हैं, और मैं हम्म, मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, वाई पीएचडी, मतलब कि मेरा कैरियर फ्यूचर क्या है, क्या करना चाहते हो। तो मैंने ये लिखा था कि मैं रिसर्च में जो R&D होती है उसी में जॉब करना चाहता हूँ, और एकेडमिक्स तो मेरे लिए ऑलवेज ओपन है अगर मैंने पीएचडी कर ली है तो ओके सर यही मैंने लिखा, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं लिखा था मैंने, ओनली 2 to 3 पैराग्राफ ओनली, ओके इतना ही मैंने। यस ओके ग्रेट। अच्छा परवेज, अभी आपने पीएचडी में आपका एडमिशन हो गया है, आईआईटी हैदराबाद बहुत ही अच्छा आईआईटी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जैसा आपने बताया कि वो अकेला एक ऐसा आईआईटी है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग से डिपार्टमेंट है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना अच्छा उसमें काम होता होगा। बहुत अच्छा करियर तुम्हें आगे मिलेगा। अच्छा, आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर आप पूछना चाहो तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स को रहेगा। तो जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, वो आप मेरे से पूछ लो। अब आप मेरा इंटरव्यू ले लो। सर, मतलब यही कि मतलब अभी पीएचडी में एक्चुअली कैरियर कैसा होगा, जैसे पीएचडी हमने कर ली तो हम्म मतलब जितने भी हमारे जो क्लासमेट्स हैं उनसे मैं बेटर रहूंगा, या मतलब ये सब बहुत चीजें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बीटेक के बाद जा रहे हो तुम, राइट? यस बीटेक के बाद जा रहे हो। एक बात पक्की है कि 5 साल लगेगा तुम्हें, 4.5 5 साल यस लगेगा। यस और अगर तुम, परवेज, बहुत अच्छा मेहनत करोगे अंदर, यस प्रोफेसर के साथ मिलके प्रोजेक्ट पे काम करोगे, प्रोफेसर इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट करते हैं, अगर तुम वो काम करोगे, बहुत अच्छा मेहनत करोगे, तो तुम्हारी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब लग जाएगी और एकेडमिक्स में भी अपॉर्चुनिटी होगा। मतलब क्या क्या ऑप्शंस खुलेंगी? एक तो आप वैसे भी कंप्यूटर्स के हो, तो इंडस्ट्री सारी ओपन है कंप्यूटर्स वालों के यस लिए। अगर तुम लेटेस्ट डोमेन पे काम करोगे तो प्राइवेट सेक्टर की कोई भी बड़ी कंपनी तुम्हें R&D के लिए उठा लेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तुम्हें ले लेगी, और बहुत हाई पैकेज पे लेगी। मतलब जो पीएचडी होते हैं आईआईटी से, उनको प्राइवेट सेक्टर में 50 लाख प्लस का ऑफर भी मिलता है, इंडिया से भी, और अब्रॉड से तो करोड़ों में चला जाता है पैकेज, अगर अच्छे एग्जाम्पल हो तो। यस अंडरस्टैंड? जैसे मैंने पीएचडी किया था तो मेरे को जनरल इलेक्ट्रिकल वगैरह में से ऑप्शन आया था, जीई वगैरह से R&D का। उससे पहले मैं डीआरडीओ में जॉब कर चुका था, तो वो रिसर्च का ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस था। बट एनी हो, अगर ना भी हो तो पीएचडी के बाद वो देखते हैं कि लड़के ने कितना सीखा है। आपने बहुत डेडिकेटेड तरीके से अगर पीएचडी कर दी तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुलती हैं। आईआईटी हैदराबाद से निकलने के बाद, पीएचडी करने के बाद, एक ऑप्शन आपके पास एकेडमिक्स का तो रहेगा ही, मतलब आप किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर टीचर लग सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास होता है पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप का, जो यस फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में आप जाके पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कर सकते हैं। वो फेलोशिप होती है, वो जॉब ही होती है, वो भी एक यस बहुत अच्छी ऑप्शन है। और एक ऑप्शन आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की है, जिसमें अपना कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया। यस सर यस तो अब होगा क्या प्रवेश, के नेक्स्ट जो कपल ऑफ इयर्स है ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देने हैं, अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% आईआईटी हैदराबाद में दे दोगे पीएचडी में, तो करियर बहुत अच्छा मिलेगा, कॉर्पोरेट में भी और एकेडमिक्स में भी, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। और ट्राई करना कि आप ड्यूरिंग पीएचडी 2 3 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे चले जाओ। कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स होते हैं आईआईटीज के, बच्चे जाते हैं पीएचडी वाले, बाहर चले जाओ, पेपर पब्लिश कर दो और अच्छा काम करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो पॉजिटिवली आपको बहुत अच्छा करियर इसके आगे मिलेगा। मतलब ये ओके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है कि आप एक नॉर्मल कॉलेज से थे और अब आपको पहली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आईआईटी हैदराबाद की, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। मैंने एक आईआईटी आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के साथ इंटरेक्शन किया था, उसका वीडियो डाला हुआ है, यस सर, मैंने देखा है उनका। उसको आप यस देखना। सर ने ये बोला है कि मैंने बीटेक तो नॉर्मल कॉलेज तक किया, फिर मैं आईआईटी यस बॉम्बे जब एमटेक करने चला गया तो मेरी इमेजिनेशन फायर हो गई, यस सर, ये और मैंने देखा। वो टर्निंग पॉइंट बन गया। यस सर यस तो वैसे तुम्हारा टर्निंग पॉइंट ये अब ये है जो आईआईटी हैदराबाद जा रहे हो। एंड आई एम वेरी श्योर परवेज, आपको बहुत अच्छी सक्सेस आगे मिलेगी, बहुत अच्छी। आप मेहनत करना, ओके और सर, कभी मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे ये तो नहीं पता कि आईआईटी हैदराबाद का कट ऑफ क्राइटेरिया क्या था डायरेक्ट पीएचडी के लिए, हम्म, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी में अगर तुम्हारे जनरल या ओबीसी से है, और समर में अगर हम देखें तो अगर 390 प्लस भी स्कोर है अगर गेट में, और बीटेक हम्म, परसेंटेज 75% अबव, देन डेफिनेटली दे विल कॉल यू फॉर डायरेक्ट पीएचडी। पीएचडी। यस, लेकिन और बस विंटर बात में बात बात वही आ जाती है प्रवेश की, बच्चे तैयारी नहीं करते ना। बच्चे अगर तैयारी करते रहे, इंटरव्यू की तैयारी करते रहे, बीटेक प्रोजेक्ट तैयार करें और अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं, तब उनको आगे सिलेक्शन हो जाएगी। कॉल तो आ जाएगा, कॉल आने के बाद भी तैयारी जरूरी है ना। तो मेरे वो साथ भी यही हुआ था समर में। मैंने मतलब इंटरव्यू दिया लेकिन एक प्रिपरेशन की से नहीं दिया था। तो अच्छी तैयारी तैयारी करे बच्चा, तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, नो डाउट अबाउट दैट। परवेज, आपका ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो जो बच्चों की डाउट्स होंगे ना, बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं,
तो जो Yes. क्वेरीज अगर आपकी तरफ होंगी और आप आंसर कर पाए तो आप उनका आंसर करना। Okay, sir. एंड नंबर 2, आपको जब भी पीएचडी में कभी भी आपको नीड फील हो मेरे से बात करने का, और तो आप मेरे को कॉल करके यू कीप ऑन डूइंग दैट, और पीएचडी से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगा, अच्छी ऑप्शन तुम्हें मिलेगी। ठीक है प्रवेश, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट। Thank you.